Hello, students. How are you? Happy and fine? Today it is the turn for your English lecture, and we have started the second unit of your textbook. It is about Nelson Mandela, a great personality we have ever seen on this earth. Today it is the fourth lecture, and it is a long unit, so I think it will take one more lecture to complete this lesson, but it is very informative, very useful to you from the point of view of your exam, and it also gives you so many life lessons. Friends, we had met these six personalities. They are very prominent in who had made struggle against apartheid. It means rang bhed niti, and we had completed this introduction about these persons, and now the last line we had completed, that these men, such an extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Courage, wisdom, and generosity. Generosity इसे हम बोलते हैं उदारता. Perhaps it requires such depth and operation to create such heights of character. Friends, operation, the word, it is very familiar to you because we have used it in last lecture. Please get the meaning of it. Operation, it means जिसे हम जुल्म कहते हैं, cruelty कहते हैं. तो these people were men of great courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ऐसे लोग अब हम नहीं देख सकेंगे. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. Depth of operation, it means जुल्म की चरम सीमा उन लोगों ने सहन की होगी, और इसके बाद ही इतनी ग्रेट कैरेक्टर वाली पर्सनालिटी का जन्म हुआ होगा. Why are these people great? Why are these people at so much height? Because they might have tolerated depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer, truer than the purest diamonds. So, what does Nelson Mandela said about his country? So, Nelson Mandela said that my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. Soil, it means माटी. मेरा कंट्री, मेरा देश मिनरल्स और जेम्स यानी रत्न, मिनरल्स एंड जेम्स में रिच है. और वेयर आर दीज मिनरल्स एंड जेम्स? दे आर बीनीथ इट्स सॉइल्स. बीनीथ इट मीन्स नीचे, अंडर, सोइल यानी माटी. तो मेरे देश की धरती मिनरल्स एंड जेम्स यानी कि जेम्स का पता है ना आपको, डायमंड्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? जेम्स. तो माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. But I have always known that its greatest wealth is its people. Which is the greatest wealth of Nelson Mandela's land? So the greatest wealth of Nelson Mandela's land is its people. How are the people? लोग कैसे हैं? Finer and truer than the purest diamond. Pure diamond से भी ज्यादा फाइन एंड ट्रू, सच्चे हीरे से भी ज्यादा सच्चे लोग मेरे देश के लोग ऐसे प्योर हार्टेड है जैसे कि कोई डायमंड प्योर हार्टेड होता है. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और इन लोग comrades it means युद्ध में साथ देने वाले फ्रेंड को क्या बोलते हैं? comrades. तो मेरे उन comrades के साथ ही मैंने courage का असली मीनिंग जाना.
Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. एक विचार मात्र के लिए मेरे देश के मैन एंड वीमेन अपनी लाइफ का रिस्क लेते हुए दे डोंट हेजिटेट. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. रेजिलेंस का मतलब राइट साइड में आपको दिया गया है. इसका मतलब है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट. कोई भी हार्डशिप हो, मुश्किली हो, तो उसके सामने डटकर सामना करने की और इस मुश्किली में से रिकवर होने की क्षमता को क्या बोलते हैं? रेजिलेंस बोलते हैं. तो मैंने अपने कॉमरेड्स के पास से करेज का मीनिंग सीखा. करेज का मतलब क्या होता है वो मैंने अपने सहकर्मी सैनिकों से सीखा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. एक सच्चे विचार के लिए अपनी लाइफ देते हुए मैन एंड वीमेन मैंने अपने कंट्री में देखा है. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स. कोई भी अटैक हो, कोई भी हमला हो, तो उसके सामने खड़े रहने वाले मैन देखे हैं. एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. कोई भी अपने को टूटे बिना, खुद को तोड़े बिना उसने एक टॉर्चर का सामना किया है. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. फियर यानी डर की गैरहाजिरी को ही करेज नहीं कहते, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. ट्रायम्फ करना यानी उसकी ऊपर जीत प्राप्त करना, उसकी ऊपर विक्ट्री प्राप्त करना, उसे हम क्या कहते हैं? करेज कहते हैं. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. ब्रेव मैन की डेफिनेशन क्या दी नेल्सन मंडेला ने? तो नेल्सन मंडेला ने ब्रेव मैन की डेफिनेशन ऐसे दी. तो ब्रेव मैन मीन्स ऐसा आदमी नहीं कि जो डरता नहीं है, लेकिन द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स द फियर. कॉन्कर करना यानी जीत में प्राप्त करना. जो भय को जीत लेता है, भय के ऊपर विक्ट्री प्राप्त कर लेता है. अ पर्सन हु विन्स ओवर द फियर. जो आदमी भय के ऊपर जीत प्राप्त करता है, जिसे अब कोई डर नहीं लगेगा, फियर को उसने जीत लिया, तो ऐसे आदमी को मैं करेज वाला ब्रेव आदमी कहता हूं. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. पूरे विश्व में कोई ऐसा आदमी का जन्म नहीं हुआ जो अपने जन्म से, no one is born by birth, दूसरे आदमी को अपने उसके कलर या उसके बैकग्राउंड के हिसाब से या उसके रिलीजियन के हिसाब से हेट करे. हेट करना यानी तिरस्कार करना. जन्म से हम किसी को तिरस्कार नहीं करते. जन्म से हम किसी के स्किन के कलर को, किसी के बैकग्राउंड को और किसी के रिलीजियन को हम तिरस्कार नहीं करते. पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ दे कैन लर्न टू हेट. लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लोग हेट करना सीखते हैं क्योंकि वो हेट करना सीख सकते हैं. They can learn to hate. They can be taught to love, for love comes more naturally to the human hearts than its opposite. Love का opposite क्या होता है? Hate. तो लोग हेट करना सीखते हैं क्योंकि वो हेट करना चाहते हैं. और बच्चों को बाय बर्थ उसे प्यार करना सिखाया जा सकता है, बिकॉज टू लव इज वेरी मच नेचुरल.
किसी को प्यार करना, टू लव एनीवन इज वेरी मच नेचुरल. ऑन द अदर साइड, टू हेट इज अननेचुरल. किसी को तिरस्कृत करना हो तो ये हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है. देखो इसके साथ मत बोलना, ये लोग हमारे दुश्मन है. देखो इसकी स्किन ब्लैक है, वो ब्लैक कलर के हैं, इसके साथ हम रिलेशन नहीं रखते. देखो इसका रिलीजियन ये है, हमें उसके साथ रिलेशन नहीं रखने चाहिए. ऐसी हेट वाली बात हम बच्चों को सिखाते हैं, तब बच्चे सीखते हैं. बाकी बच्चे तो प्यार की भाषा जानते हैं. बिकॉज टू लव इज वेरी मच नेचुरल. Even in the grimmest time in prison, grimmest time, it means सबसे ज्यादा दुखी और व्यथित time, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. मैंने एक गार्ड की आंख में ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक देखी थी. Though it was for a second, the humidity didn't lie for a long time, but he felt the humidity in the eyes of God just for a second, but he had felt it. उसने feel किया था. Man's goodness is a flame that can be hidden, but never extinguished. Extinguished कर देना, it means नाश कर देना. व्यक्ति में, पर्सन में जो गुडनेस होती है उसे हम छुपा सकते हैं. देखते हैं हम कि कोई लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के सामने हथियार लगाते हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं. तो उन लोगों में गुडनेस को हिडन किया गया है, छुपाया गया है. बट गुडनेस को कभी एक्सटिंग्विश्ड नहीं किया जा सकता, उसका नाश कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुडनेस इज अवर रियल नेचर. हमारा असली स्वभाव ही अच्छाई है. हम अच्छाई को ढक सकते हैं. हमने ऐसे देखे कई कंट्रीज में आजकल वॉर चल रहे हैं, एक दूसरे के देश के कंट्री के ऊपर मिसाइल्स छोड़ते हैं और एक दूसरे के कंट्री के लोग को परेशान करते हैं. तो क्या आप ऐसा मानते हो कि इन लोगों में गुडनेस नहीं होगी? गुडनेस होती है, लेकिन वो छुप जाती है. पर गुडनेस तो उसके अंदर है ही, वो कभी हम नाश नहीं कर सकते. ये आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जिसे मैं पीडीएफ के स्वरूप में आपको भेज दूंगी. उसके आंसर आप अच्छे से लिख लेना. पहले अगर पॉसिबल हो तो आप इस क्वेश्चन के आंसर अपने आप लिखना. थोड़ा सा आगे अब बढ़ते हैं. इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस यानी उपकार. लाइफ में व्यक्ति के ऊपर दो ऑब्लिगेशंस होते हैं. कौन से दो ऑब्लिगेशंस? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. तो लोगों के ऊपर ऐसे ऑब्लिगेशंस, हमारे ऊपर किन किन लोगों के उपकार है? तो पहले फैमिली, जिसमें कौन कौन आते हैं? पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन. एंड दूसरा ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज फेलो कंट्रीमैन, हिज कम्युनिटी, सोसाइटी, समाज और राष्ट्र. उसका भी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his inclination and ability. Inclination, it means natural tendency of behavior. कोई लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरल ही अच्छे होते हैं, उसका इंक्लिनेशन नेचुरल ही अच्छा होता है, उसकी टेंडेंसी नेचुरल ही अच्छी होती है. एंड दूसरी उसके ऊपर बात है एबिलिटीज, उसका सामर्थ्य. तो ईच मैन, दरेक आदमी, ये जो हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशंस है, ये ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हैं? पेरेंट्स के हैं, वाइफ के हैं, चिल्ड्रन के हैं, पीपल के हैं, साथ में हमारे कंट्री का भी ऑब्लिगेशन है. उसे पूरा करने के लिए प्रत्येक आदमी अपनी हिसाब से अपनी एबिलिटीज के साथ प्रयत्न करता है.
But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. But साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में जो लोग मेरे जैसे कलर वाले यानी कि ब्लैक पर्सन, ब्लैक पीपल होते हैं, इन लोगों को ये ऑब्लिगेशन, ये ऋण उतारने की सामर्थ्य नहीं होता है। हमें ये छूट नहीं दी जाती है, हमें ये अप्रूवल नहीं मिलता कि हमारे ऊपर जो ये उपकार है उसका हम बदले में कुछ दे सके। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।